Hello everyone, welcome. I'll just wait for everyone to join in. Good afternoon, everybody. If you can hear me, then just drop in a note below so I know that you are able to hear my voice and I'm audible properly. Welcome everyone, so nice to see you all. If you are able to hear my voice, then just comment so I will know that you are able to hear my sound. Welcome everyone. A great day to join in and have a live session. Happy Karwa Chauth to all the ladies and wives, husbands, everybody celebrating. A lot of you keeping Karwa Chauth even for their children and family. All the best blessings to you all. Hello Poonam, thank you for joining. So thank you everyone. I can see everyone has started to join in. A big thank you to Mompreneur Circle and Latika ji and her team for this amazing opportunity for us to get in touch with you all and interact with you all. And so today's session we are going to be talking about bringing positivity, bringing positive energy in our homes and our workplaces during the festival season. So I'm open to your questions. To start with, I have noted down a few tips that I would definitely want to share with you all. अगर आपके पास खुद का कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए और ये वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हो लाइव सेशन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो definitely you can share it on your profile or in any of your groups and so that you know everybody can benefit from this as well. And thank you Poonam, I'm very fine, thank you very much. So quickly we will I'll start giving in the tips till everyone has any questions, and just feel free to post it and I'll revert with my reply. So Diwali again is a festival that's closely coming up and it's just right across the corner. And the first thing that we all know and we all practice as well during the session, during the festival is clearing the energies from our home. So the first thing that we always do is the cleaning. The reason for cleaning during Diwali is that yes, you are cleaning all the negative energies that are stored up in your house. So जब भी हम साफ़ सफाई करते हैं उसका कारण यही होता है कि हम अपने घर से पुरानी नेगेटिव एनर्जीज़ को निकाल के उसको नई एनर्जी के साथ भरते हैं. और जब हम दिया जलाते हैं दिवाली के टाइम पे, वो दिए का रीज़न भी यही है, the light energy destroys all the negativity and the darkness. So even a small spark of light is brings in a new day even in a dark room. Yeah, तो इसके लिए हम दिया जलाते हैं कि हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो दिए में पूरी भस्म हो जाती हैं. सो दे डेसिपेट इन द एनर्जी ऑफ द light. That is the reason we are burning diyas in our homes. So I'll share a few tips with all of you. Very quick and simple things that you can do in your home. How can you bless your home? How do you bring prosperity into your home during the festivals? Even other than the festivals, how can you sustain that positive energy in your home? Everybody has issues even in their regular daily life. So small things that you can do which will automatically bring in the positive energy in your home. So if you want to note them down, you can note down these tips, or if you have any doubts and questions, do ask me if you are not able to understand how to use them. So when you're doing the cleaning of your house, make sure you are cleaning the corners as well, very well. Corners, and even when you have webs
घर में झाली हो जाती है ना दीवारों पर, कॉर्नर्स पे, तो उसको हमेशा अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। अगर आपको कोई लगता है कि किसी रूम में अंधेरा ज़्यादा है तो वहाँ पर एक छोटा सा दिया जला सकते हो आप, तो वो रोशनी से वहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी रहती है वो डेसिपेट हो जाती है। तो एनीथिंग इन योर हाउस दैट नीड्स अ क्लीनिंग, जस्ट डू द क्लीनिंग, बिकॉज क्लीनिंग से क्या होता है, हमारी पुरानी एनर्जी जो हमें नहीं चाहिए, द एनर्जी दैट वी डोंट नीड इज़ रिमूव्ड व्हेन वी आर डूइंग रेगुलर क्लीनिंग। तो क्लीनिंग से हमारी पॉजिटिव एनर्जीज इंक्रीज होती हैं घर में, और स्पेशली कीपिंग थिंग्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इवन योर किचन, इफ इट इज़ इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, kitchen is known to be our home of Lakshmi, our prosperity. So when you are keeping your kitchen organized and it is always filled, you know, the bottles in your house that you are keeping, make sure that they are filled, means और ख़त्म होने से पहले उनको भर लीजिए। तो इट शोज़ कि आपके पास लक्ष्मी का और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है आपके घर में। और अगर घर में आपके, कभी कभी हम, बहुत लोगों को आदत होती है स्टॉक करने की चीज़ें, और फिर बोलते हैं अरे मेरे पास जगह नहीं है, इतना सामान है, कहाँ रखूँ, ये ना कंप्लेन हो जाता है। तो कंप्लेन मत किया कीजिए। अगर आपके पास घर में जगह नहीं है तो बोलिए अरे अच्छा है, मेरे पास बहुत सारा है, आई एम इन अबंडेंस, आई हैव सो मेनी थिंग्स। अगर जगह नहीं है तो हाँ ठीक है, मेरे पास जगह मुझे इसके लिए बनानी पड़ेगी। तो आप प्रॉस्पेरिटी को जगह दे रहे हो अपने घर में। तो हम जब ये बात करते हैं ना, आवर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं बोलते कि हम घर में कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं ज़्यादा, अरे इतनी सारी चीज़ें आ गई, भी कहाँ रखूँ, मेरे पास तो जगह ही नहीं है। तो आपने क्या किया, तो आपने लक्ष्मी जी की बोल रहे हो भाई आपके लिए मेरे पास घर में जगह नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरे घर में मत आओ। तो हमारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हमारे घर में चीज़ें हैं और हमारे पास उनके लिए जगह नहीं है, बोले ठीक है मैं इसके लिए जगह ज़रूर बनाने वाली हूँ। सो मेक अ प्लेस फॉर इट। इवन योर फूड, योर बॉटल्स दैट यू कीप इन द किचन, उनको ऑर्गेनाइज करके रखिए, उनको अच्छी तरह से भर के रखिए, उनको रेगुलरली साफ़ करके रखिए। अगर थोड़ी सी चीज़ है, अगर आपको वेस्ट नहीं करनी है तो उसको आप दान करके खिला दीजिए, पशु पक्षी को खिलाइए, किसी पर्सन हु इज़ इन नीड उसको खिलाइए। तो ये जो फ्लो है ना वो कंटिन्यूस है। हमारे यूनिवर्स में प्रॉस्पेरिटी हमारे पास तभी आती है जब हम देते हैं। जितना आप देते हो उतना ही आपको रिसीव होता है। तो अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप ब्लेसिंग्स दीजिए भी, अच्छी बातें बोलिए। सो इवन इफ़ यू आर हैविंग फूड, नो, यू आर डूइंग शॉपिंग एंड कमिंग इन योर हाउस, bless the things that come in your home, that thank you very much God that you have given me this, I invite more of this. कभी कभी बहुत लोगों को आदत होती है कि हम बाहर जाते हैं तो एक के बदले हम 10 चीज़ें ले आते हैं। और बहुत सारी वाइफ्स भी कंप्लेन करती हैं हस्बैंड्स को कि अरे मैंने तो सिर्फ आपको बोले एक ही ले आने के लिए, आप तो 4 उठा के लेके आए। तो ये कंप्लेन नहीं करिए। अच्छा है कि आपके पास आज इतने घर में बरकत है कि आपके पास एक के बदले 4 चीज़ें आ गई। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर सेइंग, नॉट ओनली टू योर सेल्फ, टू योर फैमिली। क्योंकि हमारे ज़बान पे ना सरस्वती माता बैठती है और लक्ष्मी जी हमारी बातें सुनती हैं। तो अगर हम उनको वेलकम नहीं करते, ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करते हैं हमारे घर में। सो दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न टू इनकॉर्पोरेट इन टू आवर लाइव्स। हमारे शब्द ना, उनकी इतनी पावर होती है कि हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। ठीक है, वी आर नॉट इवन we do not anticipate what we are saying has such a deep and impactful reasons and presence in our life. So okay, let me get to the next tip. Electronics in your home. घर में कोई भी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर वो नहीं चल रही हैं तो प्लीज़ या तो उनको रिपेयर कर दीजिए या उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। Even sometimes you have wires, headsets, mics or speakers, players, lot of camera or something, पुरानी चीज़ें हम लेके बैठ जाते हैं और हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। या तो आप उसको बीच बीच में खोल के उसको साफ़ करिए, उसको थोड़ा सा यूज़ करिए और फिर बंद करके रख दीजिए। अगर वो नहीं चल रहा है तो या तो उसका रिपेयरिंग कराइए या तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए।
Electronics are our indicate our communication with the outer world. तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर्ड नहीं होते हैं या वो ख़राब हैं और नहीं चल रहे हैं, तो हमारा दुनिया के साथ हम जो पोर्ट्रे कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो कम्युनिकेशन हमारा सही नहीं रहेगा. लोग हमें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे बराबर. सो अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स करेक्ट नहीं है तो उनको रिपेयर कीजिए. अगर रिपेयर नहीं हो रहे हैं और वो आपके काम के नहीं हैं तो प्लीज़ उसको डिस्कार्ड कर दीजिए. दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स. अनदर थिंग इज़ टैप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर होम. लीकिंग टैप्स, ब्रोकन मिरर्स, ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ को घर देते हैं. टैप्स भी अगर लीक हो रहे हैं तो प्लीज़ उसकी मरम्मत कराइए, उसको सील कराइए या तो टैप्स को चेंज कर लीजिए. टैप्स इज़ शोइंग द फ्लो ऑफ अबंडेंस इन आवर लाइफ. ठीक है, प्रॉस्पेरिटी हमारे घर में कैसे आती है. प्रॉस्पेरिटी इन एवरीथिंग, इन मनी, इन वेल्थ, इन नॉलेज, इन हेल्थ. ये हमारी बहुत चीज़ें उसको इंडिकेट करते हैं. तो अगर आपके घर में टैप्स लीक हो रहे हैं, बंद नहीं होते सही तरह से, रात को पूरा पानी टप 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 करता रहता है, तो प्लीज़ उसका रिपेयरिंग करा लीजिए. क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमारे जस्ट शोज़ कि हमारी जो सेविंग है, हमारी जो वेल्थ है, हमारी प्रॉस्पेरिटी है, वो आहिस्ते आहिस्ते करके ड्रेन हो रही है. तो ये दूसरा एक अच्छा दिस थिंग है. बहुत लोग उसको इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने की चीज़ नहीं है. इट इज़ बेटर टू गेट इट रिपेयर्ड इन टाइम. और क्योंकि जैसे टैप में क्या आता है, पानी आता है, राइट. वो क्या है, सबको वही पानी है, करेक्ट. हमको भी यूनिवर्स से वही इंटेलिजेंस है, वही नॉलेज है, वही अबंडेंस है. लेकिन हम उस टैप को कैसे चलाते हैं, वो टैप को कैसे मेंटेन करते हैं, वो हर एक पर्सन के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है. तो उसका हमको कैसे मेंटेन करना है वो हमारे ऊपर है. ठीक है. सो एनी लीकिंग टैप्स यू हैव, एनी ब्रोकन मिरर्स, broken vessels, vase, anything in your house that is broken, either you mend it, or if it is not mendable, then please discard it from your home. These are small things, but they are having a meaning, and they play a part in portraying the energy around us. So if anybody has any questions, let me know. Okay, I'm just going according to what I've few points that I have noted down, which I think everybody would like to. Another great way of clearing the energy from your home is using camphor. कपूर जो हम पूजा में भी यूज़ करते हैं, हवन करते हैं, तो वी ऑलवेज यूज़ कपूर. कपूर से क्या होता है, वो एनर्जी हमारे घर की एनर्जी को चेंज कर देता है. सो आई विल गिव यू 2 थिंग्स व्हाट यू कैन डू विथ कपूर. कपूर को हम आप एवरी सैटरडे आप घर का क्लेंजिंग कर सकते हो. अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है, आप उसमें 2 या 3 कपूर ले सकते हो. और कपूर को लेके ऐसे हाथ में अपने घर के एंट्रेंस से शुरू करना है आपको. उसको बर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ 2-3 कपूर अपने हाथ में रखना है. और स्टार्ट फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस, स्टार्ट वॉकिंग क्लॉकवाइज, okay, and then anti-clockwise. So as you're walking, your intention will be that I am this kapoor is absorbing all the negative energies in my house that I do not need anymore. Any negative emotions, any negative thoughts that do not serve any purpose to me, I am this kapoor is absorbing that negative energy. ऐसे मन में इंटेंशन रख के ये कपूर को लेके आपको घर में क्लॉकवाइज कर चलना है. पहले एंट्रेंस तक आके फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है. सो कवर एवरी रूम ऑफ योर हाउस, एवरी, इवन इफ इट इज़ द बाथरूम, गो नियर द बाथरूम, डोंट नीड टू एंटर द बाथरूम. यू कैन जस्ट पास नियर द बाथरूम, ओपन द डोर, turn the hand inside and come out. So do clockwise and then anti-clockwise. Once you are done, the same कपूर you can put it in a small plate, और जहाँ आप दिया जलाते हो उस कपूर को आपको बर्न कर देना है. I am thanking the universe 3 times, and then you can go and wash your hands. This is a very good technique to do the
क्लियरिंग ऑफ योर हाउस, आप अपना घर की क्लियरिंग, अपने ऑफिस की, अपने फैक्ट्री की, आपकी जो वर्कशॉप है, सेंटर है, जो भी है, आप उसकी क्लियरिंग ऐसे कर सकते हो कपूर से। बहुत ही अच्छा टेक्निक है, एवरी सैटरडे आप कर सकते हो इसको, ठीक है। दिन के टाइम में कीजिए या तो शाम को आप कर सकते हो, बट सूरज ढलने से पहले, ठीक है। The other thing that you can do is Madhviji, no need to get scared. God bless you that your delivery date is close by. Don't need to worry. God is great and He is always with you. उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो please whenever you are feeling scared, ask the protection of God अराउंड यू। आप जिसको भी प्रे करते हो उनकी एनर्जी को आप बुलाइए एंड आस्क हिम और हर वॉट एवर, वेदर इट इज़ देवता और देवी दैट यू आर प्रेइंग टू, you can ask them to go before you and to protect you and your child always. okay, तो ये प्रोटेक्शन है आपको, उनकी एनर्जी को आप 2-5 मिनट का भी ध्यान कर सकते हो। Call for the energy of the Lord or the Dev or Devi that you're praying to, and ask them to give you the protection for yourself, for your child, and that you are going through this delivery with total ease, joy and glory. So you are handing over the situation to God, that this child that you have given me is your gift. How you want me to bring this child into this world is your lookout. So please let it go, give it to God, and He will definitely take care of you and of your child as well. Nothing to worry. It is the most natural process in this world, you know, and the most beautiful thing that you can do is to have a baby. I mean, so many of mothers who have gone through this don't even remember the experience, but yes, it is the most beautiful thing in the world that you are blessed to have a baby. So God bless you, my blessings and wishes to you, and may you have a safe and healthy delivery. Wishing all the best and good health to you and your baby. Thank you so much. So yes, so camphor, this is how you can do the clearing. That is one on the Saturday you can do. Even camphor helps for those people who are not feeling well, like छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी उनको बहुत जल्दी सर्दी होती है, या उनको बहुतों को नज़र लगती है बार बार, तो आप उनके कमरे में, आप अपने पूरे घर में यू कैन डू, हर एक रूम में आप 2 कपूर छोटे से कटोरी में, आपके पास या तो कांच की कटोरी हो या स्टील की कोई भी छोटी सी कटोरी में 2 कैम्फर आपको सिर्फ रखने हैं अपने रूम में। कैम्फर अब्जॉर्व्स नेगेटिव एनर्जी वेरी वेल। तो अगर आपके पास कैम्फर ऑयल भी है तो आप कैम्फर ऑयल भी बर्न कर सकते हो पानी में डाल के, वो जैसे डिफ्यूज़र में डालते हैं ना, तो पानी डाल के उसमें 2 बूंद कैम्फर ऑयल और नीचे से दिया रख के वो डिफ्यूज़र में आप यूज़ कर सकते हो। अगर डिफ्यूज़र भी नहीं है तो कैम्फर बर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको आपको रूम में रख देने हैं। 2 पीसेस कैम्फर के इनफ है। एवरी रूम यू कैन कीप, इवन इन योर बाथरूम यू कैन कीप, बाथरूम और टॉयलेट में ऑल्सो यू कैन कीप। तो वो रुष्टि जी, yes, I will come to that. I read your message and I will tell you what to do with that. I'm getting to that, okay? Let me finish this one first. So camphor you will keep in your room, in your bathroom, 2 पीसेस किचन में भी रख सकते हो। वो कैम्फर को ऐसे ही कोने में रख दीजिए, उसकी स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। जो लोग रेस्टोर कर रहे हैं ना अपनी हेल्थ से, तो उनके बेड के पास भी आप रख सकते हो या बेड के नीचे रख सकते हो। उससे नेगेटिव एनर्जीज डिस्पेल हो जाती है, अब्जॉर्व कर लेता है कैम्फर। उसको 2 या 3 दिन लगते हैं उसको पूरा डिसअपियर होने के लिए। सो कैम्फर टेक्स अबाउट 2 to 3 days टू डिजॉल्व, इट विल वेपराइज कम्प्लीटली, इट विल बी गॉन। ओके, अगर 2-3 दिन हो जाते हैं, अगर पूरा डेसिपेट भी नहीं होता है तो आप उसको फेंक सकते हो, कोई बात नहीं। 2-3 दिन के बाद जस्ट डोंट टच इट, जस्ट इमीडिएटली थ्रो इट इन द डस्टबिन और आउटसाइड द हाउस। अगर बर्न करना है तो बर्न भी कर सकते हो, अगर छोटा सा पीस रह गया है तो आप उसको बर्न भी कर सकते हो। सो कैम्फर हेल्प्स अ लॉट इन रिस्टोरिंग हेल्थ ऑल्सो फॉर लॉट ऑफ पीपल हु गो थ्रू
इलनेस, और अभी हम लोग पैंडमिक से हम लोग इतना गुजर के आए हैं सब लोग, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू कीप इन योर हाउस, इन योर ऑफिस। 2 पीसेस रखनी है, उसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा भी लगता है। कैम्फर यूज़ कर सकते हो या कैम्फर ऑयल, जो आपको कंफर्टेबल है आप यूज़ कर सकते हो। Yes, Nidhi, it's a very good thing to do. You can put it in your bedroom in the night. It's very good. You can keep the camphor for 2 to 3 days and then you can throw it if it's not completely vaporized. Otherwise, you can change it also frequently, not a problem. You can change it every day. Okay. So, blessing your home is the next thing that I want to share with you all. Rushti ji, you can also do this for your new business, for your new office if you have, or if you're working from home, you can do this as well. आप सुबह सुबह जब भी आप दिया करते हो या पूजा करते हो, प्रेयर करते हो ना, सुबह के टाइम पे एक पानी का ग्लास ले लीजिए या पानी की कटोरी ले लीजिए। कांच का ग्लास रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। इफ़ यू हैव अ ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, यू कैन टेक, फिल क्वार्टर और हाफ अ ग्लास पानी से भर के अपने हाथों में उसको होल्ड करना है। आप जब भी प्रेयर करते हो या मेडिटेट करते हो, वो ग्लास को आप हाथ में पकड़ के यू विल ब्लेस द वाटर। 2 मिनट आंखें बंद कर दीजिए। आस्क गॉड्स प्रेजेंस दैट आई विथ योर प्रेजेंस प्लीज ब्लेस दिस वाटर with a lot of prosperity, abundance, good health. I'm blessing my home or my office, my business with prosperity, lot of abundance. Whoever is coming in my space will always bring positivity, will be always blessed with good health, joy and happiness. This way you will hold the glass in your hand. ऐसे उसको आप पकड़ोगे, आप वो पानी को देख के आप उसको ब्लेस करोगे। अगर आप में से कोई हीलिंग करता है, आप या तो रेकी करते हो या प्राणिक हीलिंग करते हो या लामा फेरा, कोई भी हीलिंग आप करते हो, तो उसके सिंबल्स आप पानी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो और दैट वाटर इज चार्ज्ड। ठीक है, वंस यू हैव डन दैट, से थैंक यू टू द यूनिवर्स 3 टाइम्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया करना है भगवान को और ये पूरी प्रकृति को। उसके बाद ये पानी को आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है। यू हैव टू स्प्रिंकल दिस ब्लेस्ड वाटर on your home. You can start from the entrance of your home. You can sprinkle it in the corners, on the walls, on the floor, on the ceiling, in your children's room, on your cupboard. If you want, you can sprinkle. You can sprinkle it across your house, in your kitchen, everywhere. You are blessing. As I told before, हमारी ज़बान पे सरस्वती माता बैठती है, हमारे वर्ड्स में पावर होता है, तो जो हम बोलते हैं वो ही होता है। तो जब भी हमको अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, हमको पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, ये सब चाहिए, तो ये हमको हमारे घर में ब्लेस करना है। ये हम बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, मेरे पास पैसे बचते नहीं है। आप अपने आप की ना वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो एक दिन 24 आवर्स की, सुनो आप क्या बोलते हो और फिर उसको प्ले करो। आपको समझ में आ जाएगा आप कितना नेगेटिव बोलते हो। So correct your language. When you are talking, bless the water, bless your home, bless your office, bless your children. आपके बच्चे हैं छोटे घर में, आपके हस्बैंड हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, इन-लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी है आपके घर में जो रह रहा है, आप अपने घर को इतना ब्लेस करो कि आपके घर में जो आता है वो ब्लेस ही होके जाएगा। मीन्स आपके घर में वो टच किया जैसे कि उसने किसी तीर्थ यात्रा पे उसने पैर रखा हो, इतनी अच्छी ब्लेसिंग उसको मिलनी चाहिए। तो हम द यूनिवर्स इज अ सिंपल गिव एंड टेक। जितना हम देते हैं हमको उतना ही मिलता है, तो हम जितनी ब्लेसिंग्स देंगे हमको उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। सो ब्लेस योर होम। इवन इफ यू आर इन डेब्ट, you don't need to keep on repeating I'm in debt, you have to correct yourself. I am abundance, I am prosperity, my home is always filled with health, with good health, with joy, with happiness. This is how you're blessing your home. Bless yourself, bless your people in the house. जितना आप bless करोगे उतना ही blessings हमको वापस आती है।
हमको अपनी ब्लेसिंग्स का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना कर्मा करते जाएंगे अच्छा अच्छा, और हमारे साथ अच्छा ही होता है। करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग। अच्छा, ये पानी को चार्ज किया, अभी आपके लिए मंत्रा चैंटिंग आप कर सकते हो। जैसे आपको डेप्थ है, इशू है, हेल्थ की इश्यूज है, या आपको नींद नहीं आती, यू नो, यू हैव पीस नहीं है घर में, सब लोग यू नो तू में ज़्यादा होती है। जब भी तू में घर में ज़्यादा होती है ना, तो थोड़ा सा पानी को ब्लेस करके पूरे घर में छिड़क दो। और मंत्र चैंटिंग बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी आप मंत्र कर सकते हो, गायत्री मंत्र कीजिए आप, या महामृत्युंजय कर रहे हो, हनुमान चालीसा करते हो, आप कोई भी मंत्र जो आपके मन से रेजोनेट होता है, जो आपको whatever you like, you know, whatever you want to bless yourself with, आप उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी मंत्र चैंटिंग कीजिए। आपको सुबह को टाइम मिलता है, शाम को टाइम मिलता है, 2 मंत्र चैंट करने हैं, 3 मंत्र चैंट करने हैं, कीजिए। पानी का ग्लास लेके बैठिए, ठीक है। एक कांच का ग्लास ले लीजिए या स्टील का लीजिए, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, fill it up, fill the whole thing if you want, do your mantra chanting, even if it is for your family। अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, हस्बैंड के लिए कर रहे हो, पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, इन लॉज के लिए कर रहे हो, मंत्र चैंटिंग करने के टाइम पे आप उसको पानी का ग्लास लेके अपना मन से मंत्र चैंटिंग कीजिए। अब किसी और के लिए अगर कर रहे हो, देन सेट द इंटेंशन दैट थैंक यू गॉड, आई एम चैंटिंग दिस मंत्र फॉर सो एंड सो पर्सन, तो उस पर्सन का नाम लीजिए एंड फिर वो मंत्र चैंटिंग कीजिए। ख़त्म होने के बाद थैंक यू करना है भगवान को, यूनिवर्स को 3 बार, और बोलना है कि अभी मैंने ये मंत्र जाप इसके लिए करना ख़त्म कर दिया है। और वो पानी आप उसको पिला भी सकते हो, या तो वो पानी अपने घर के मेंबर, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप सुख शांति के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने घर में सब मेंबर्स को वो पानी का जल दे सकते हो। अगर आपको उनको पिलाना नहीं है कि भाई ये सब लोग बोले क्या पिला रही है, तो बोले मंत्र ही है ना, हम प्रे ही कर रहे हैं ना, हम आपके लिए ब्लेसिंग्स ही मांग रहे हैं, तो वो आप उनको 1-1 चम्मच वो पानी पिला सकते हो। या तो आप अपने फिल्टर में या जग में जो आप स्टोर करते हो उसमें पानी मिक्स करके डाल दीजिए, और थोड़ा सा पानी बचता है तो आप घर पे स्प्रिंकल कर दीजिए। So the water energy is amazing. Pani is the most quickest thing that will change the energy. Our body is mostly made up of water. 70 to 75% of 73% जो भी percentage हमारी body is completely made of water. Correct? तो जब भी हम पानी यूज़ करते हैं, पानी वाटर चेंजेस द एनर्जी, वो इमीडिएट उसकी वाटर की एनर्जी चेंज होती है। आप मंत्र जाप करके, आप मंदिर में भी हम लोग जाते हैं ना, तो हमको पुजारी जी देते हैं, है ना, जल देते हैं, स्प्रिंकल करते हैं हमारे ऊपर पानी। करेक्ट, तो ये इसी के लिए होता है कि पानी इज़ अ वेरी गुड क्लेंजर, इट चेंजेस एनर्जी क्विकली। पानी के क्रिस्टल्स की एनर्जी हमारे शब्दों के हिसाब से, हमारी एनर्जी के हिसाब से चेंज होती है। तो अगर हमने मंत्र जाप किया है तो वो पानी आप इमीडिएटली कंज्यूम कीजिए और इमीडिएटली घर के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। उसको छोड़ नहीं देना है। आपने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर, आसपास के लोगों ने आके फिर से दूसरी नेगेटिव बातें करना शुरू कर दी, वो पानी का चार्ज खत्म, वो चेंज हो जाएगा। अगर वही पानी आप पी रहे हो मंत्र जाप करने के बाद, तो वो पानी जो है वो एनर्जी आपके फुल बॉडी में कंज्यूम हो जाती है, आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर लेती है पूरी एनर्जी को। सो इट इज़ अ वेरी गुड वे टू चेंज एनर्जी ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ द पीपल इन योर हाउस एंड ऑल्सो ऑफ योर हाउस एंड योर ऑफिस। इट्स अ वेरी वेरी गुड वे। अगर आप लोग हीलिंग करते हो, आपको सिंबल्स पता है, हर एक हीलिंग मोडालिटी में कोई ना कोई सिंबल्स सिखाते ही हैं, आप वो सिंबल्स यूज़ कर सकते हो। नहीं तो ईजीएस्ट इज़ यूजिंग शुभ लाभ और ओम, दीज आर हीलिंग सिंबल्स। शुभ लाभ आप पानी के ऊपर भी, ग्लास का पानी है ना, ऐसे पकड़ के उसके ऊपर शुभ लाभ 3 बार ड्रॉ करना है और 3 बार बोलना है अपने मुंह से, आपको वो पानी भी चार्ज हो गया। ओम भी आप लिख सकते हो, ये भी हीलिंग सिंबल है।
ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीके हैं। स्वाति जी, यू आर सेइंग हाउ टू हेल्प योर सन विथ योर स्टडी, विथ हिज स्टडीज़। अच्छा, एक आसान सा तरीका बताती हूँ आपको। स्टडीज़ के लिए आप उनके लिए जाप कर सकते हो, तो जाप करने का भी आप जाप कीजिए और वो इंटेंशन रखिए और फिर वो पानी चार्ज करके आप उसको दे सकते हो। नहीं तो फिर एक एनर्जी सर्कल बना के भी कर सकते हो काम, कि भाई डिस्टेंट में उसके लिए वो काम करता ही रहेगा। इफ़ यू once after the session, if you can see, there is on my page also I have shared a few energy circles for children. बीच बीच में शेयर करते रहती हूँ, बट आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एनर्जी सर्कल आपको भेज देती हूँ आपके बेटे के लिए फॉर हिज स्टडीज़। तो आप उसका नाम लिख के उसके ऊपर कर सकते हो, नहीं तो एक सिंपल सा आप बना भी सकते हो। चलो मैं आपको थोड़ी देर में आपको एक बना के वो फोटो पोस्ट कर देती हूँ यहाँ पर। सो यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, एक राउंड सर्कल बना सकते हो रेड कलर या ब्लू कलर की पेन से। अपने बेटे का नाम लिख दीजिए उसमें और अपना इंटेंशन लिखिए फॉर इंक्रीजिंग हिज कंसंट्रेशन एंड फोकस एंड इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज़। ये इंटेंशन करके और उसके नीचे आप मंत्र लिख सकते हो। यू कैन राइट डिवाइन ग्रेस बी टुगेदर फॉर एवर। ठीक है, मैं या तो नीचे आपको डाल देती हूँ यहाँ पर। एक सेकेंड, आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर हियर इन द कमेंट बॉक्स सो दैट यू ऑल कैन यूज दिस energy circle in a very quick way. So divine grace be together forever. ठीक है, इसमें हमें जब भी हमारे से कुछ नहीं हो रहा है ना, और हमें भगवान की we need God's intervention, then you can use this phrase. It works very nicely. तो आप एक एनर्जी सर्कल बना सकते हो and you can write the name of your child in the energy circle. एनर्जी सर्कल पूरा राउंड होना चाहिए, कटा फुटा नहीं होना चाहिए प्लीज़। और रेड कलर या ब्लू कलर की पेन से कर सकते हो या ग्रीन कलर की पेन भी आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर बच्चे बहुत एंग्री है, मीन्स बहुत जल्दी गुस्सा आता है और हाइपर है, तो रेड कलर नहीं यूज़ करना, ब्लू या ग्रीन यूज़ कर लेना। सो you can draw the energy circle on a blank piece of paper. Thank you, Nidhi. Yes, it is very effective. Nidhi has always tried it, so she knows. She's tried it with her children. So you can draw the energy circle, write the name of your child, okay, write the intention that you want his interest, his focus and concentration to increase, and then write this mantra in the same energy circle. आपके words को circle को touch नहीं करना है। ये पेपर आप उसके कमरे में लगा दीजिए, खाली वो पेपर को आपको ऐसे हाथों में होल्ड करना है। यू विल होल्ड द पेपर इन योर हैंड एंड जस्ट से द यूनिवर्स, आई इंटेंड टू एक्टिवेट दिस एनर्जी सर्कल फॉर माई सन एंड टू इंक्रीज हिज कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस एंड इंटरेस्ट इन स्टडीज। बस ये इंटेंशन करके ये एनर्जी सर्कल आपका एक्टिवेट हो गया और वो पेपर को आप दीवार पे चिपका दो। आप डेस्क पे भी रख सकते हो, बट उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ नहीं रखना। अगर वो पेपर फट जाता है, क्रम्पल हो जाता है, उसके ऊपर दाग लग जाते हैं एनर्जी सर्कल के ऊपर, तो प्लीज़ उसको डिस्ट्रॉय कर लीजिएगा। ठीक है, नो नीड टू यूज़ इट, यू कैन मेक अ फ्रेश वन। डोंट यूज़ लाइन पेपर और प्रिंटेड पेपर, रिसाइकलेबल पेपर नहीं, फ्रेश ब्लैंक पेपर यूज़ कीजिए, वाइट या कोई भी पेस्टल कलर चलेगा। सेम वे लीना जी, आप हेल्थ इश्यूज़ के लिए वो कर सकते हो, आप चैंटिंग कीजिए। अगर कोई भी हेल्थ इशू है तो प्लीज़ डू द चैंटिंग ऑफ कुंजित पादम शरणम। इट इज़ अ ब्यूटिफुल एंड अ पावरफुल मंत्र, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। 108 times you will do that. Do the mantra chanting, take a glass of water, then consume the water once you have finished the chanting. कुंजित पादम शरणम। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं बाद में आपको वो लिंक भी भेज देती हूँ, मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको वो नीचे भेज देती हूँ। आई विल राइट डाउन दी मंत्र ओवर हियर ऑल्सो।
तो आप लोग को अगर देखना है तो कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड अबाउट most of your questions. If I have missed out on anyone, just let me see. How to convince or persuade people for something? Please give some strategies. Okay. You can do chanting or do the energy circle. How many people you want to convince? Ashwini ji, चैंटिंग कीजिए या एनर्जी सर्कल बनाइए। जैसे मैंने अभी उनको भी बताया ना, रुष्टि जी को, फॉर हर सन स्टडी, सेम वे आप एक एनर्जी सर्कल बना के एक कटोरी ले लो, पेपर के ऊपर रख के, और एक मस्त आराम से सर्कल बना लीजिए एंड राइट द नेम ऑफ द पर्सन एंड व्हाट इज योर इंटेंशन एंड यू कैन राइट दिस सेम फ्रेज, डिवाइन ग्रेस बी टुगेदर फॉर एवर। स्विच वर्ड्स एनर्जी सर्कल्स बहुत आसान हीलिंग है और बहुत अच्छी तरह से आप सीख भी सकते हो उसको, और इट्स वेरी इजी टू यूज़, और बहुत सारी चीज़ें हम उससे कर सकते हैं। तो वाटर का और वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा चलता है, और मंत्र चैंटिंग का तो इतना अच्छा इफेक्ट होता है कि मैं, इट्स अमेजिंग। येस माय डियर, इवन हेल्थ इश्यूज सेम थिंग। गीता जी, मैं वही बोल रही हूँ, हेल्थ इश्यूज, आई प्रॉब्लम के लिए भी आप वही कर सकते हो। मैंने ये जो अभी डाला है मंत्र कुंजित पादम शरणम, आप वो कर सकते हो। एनर्जी सर्कल बना के, इफ यू ऑल कैन गिव, शुड आई जस्ट शो यू द एनर्जी सर्कल? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू शो यू। One second. So okay, I've got a small energy circle here. This is a energy circle for prosperity, wealth. Okay, तो ऐसे ही ये तो कंप्यूटर पे बनाया हुआ है, लेकिन आप ऐसे ही एक राउंड सर्कल बना के you are going to put the name of the person and the intention. अगर हेल्थ इश्यूज है आप उस पर्सन का नाम डाल दीजिए और आप उसका इंटेंशन लिखिए। अगर आई प्रॉब्लम है तो यू विल राइट रेस्टोरेशन ऑफ माई आई साइट, रेस्टोरेशन ऑफ माई विजन, हेल्दी आईज, ओके, रेस्टोरेशन ऑफ माई आईज टू बी हेल्दी, ओके, ऐसे लिखना है इन द पॉजिटिव एज इफ इट इज डन। तो ये आप कर सकते हो, और नीचे उसके आप ये वाला जो मंत्र मैंने दिया है वो आप लिखोगे। अगर आप चैंट कर रहे हो तो आप चैंट भी कर सकते हो, और वो पानी का ग्लास आप लेके बैठिए चैंटिंग के टाइम पे। अगर बच्चों के लिए आई प्रॉब्लम है या बड़ों के लिए है तो सेम वे यू कैन गिव देम द वाटर टू ड्रिंक। अगर वो खुद अपने लिए करते हैं, मन में इंटेंशन रखना है, देन आई एम चैंटिंग दिस फॉर माई हेल्थ, आई एम चैंटिंग दिस फॉर माई आई प्रॉब्लम, एंड देन यू डू द चैंटिंग ऑफ द मंत्र। अगेन यूज द ग्लास ऑफ वाटर, it is amazing, and you can drink the water after the chanting is over. करंट जॉब मंत्र, बिजनेस के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो। हनी जी, आप बिजनेस के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो। यू कैन यूज फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस, यू कैन यूज दिस, आई एम शोइंग यू द एनर्जी सर्कल हियर। यू कैन यूज फाइंड काउंट डिवाइन सिट्रीन। मंत्र मैंने अभी लिखा है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, तो आपको मॉमप्रेन्योर सर्कल के आईडी पे मंत्र दिख जाएगा। मैंने लिखा है कुंजित पादम शरणम, दिस इज फॉर योर हेल्थ, ऑल हेल्थ। कभी भी हम लोग हेल्थ, या अगर हमको सुनाई देता है कि कोई और हॉस्पिटल में है, कोई एडमिट हो गया, सडनली कुछ हो गया, उसको हेल्थ इशू हो गई और आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हो, इमीडिएटली आप ये मंत्र चैंट कर सकते हो उनके लिए। इतना अच्छा इफेक्ट रहता है। कभी भी आपको किसी सिचुएशन में आपको घबराहट होती है, यू फील स्कैर्ड, डर लगता है कि अगर मैं ये काम मेरा हुआ कि नहीं हो गया, हम लोग ऑटोमेटिकली पैनिक स्टेट में आ जाते हैं। सो अगर हमको कभी भी वी आर इन अ पैनिक स्टेट, वी आर स्कैर्ड, वी आर फियरफुल, sometimes we are going, somebody from the family is going traveling somewhere, हमको डर लगता है, या किसी के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में हम लोगों ने बुरा सुन लिया कि भाई बेचारे एडमिट हो गए, सडनली ये हो गया, वो हो गया, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हो,
उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल तक जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही बैठिए, मंत्र कीजिए, वो बेस्ट ब्लेसिंग दे सकते हो आप उनको। आप कुछ नहीं कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में, इमीडिएटली चैंटिंग शुरू कर दीजिए, इतना अच्छा इफेक्ट होता है कि प्रेयर्स का तो कोई I mean prayers are so powerful that we do not use it to the you know full potential of it। हम किसी और के लिए जब भी प्रे करते हैं, इतना अच्छा हमारा कर्मा होता है, इतनी अच्छी हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं। सो व्हेन यू आर प्रेइंग फॉर अदर्स, you will also have others praying for you। So never hesitate, never stop from praying for others। अगर आप कभी भी कोई भी बुरा सिचुएशन आप सुनते हो, घबरा जाते हो, यू कैन डू दिस मंत्र चैंटिंग ऑफ कुंजित पादम शरणम। इतना रिलैक्सिंग फील होगा, आपकी हार्ट बीट ये वो जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर ये वो सब कुछ काम डाउन हो जाएगा। आप किसी और के लिए भी चैंट करते हो तो उनका नाम लेके कीजिए 108 टाइम्स। चैंटिंग इज 108 टाइम्स। गीता जी, यस, थैंक यू लीना। यस, हेयर फॉल प्रॉब्लम ऑल्सो यू कैन डू, बट हेयर फॉल के लिए टाइम लगता है, 3-4 महीने लगते हैं, बट इट वर्क्स। ठीक है, वो ट्राई करके देखिए, एनर्जी सर्कल बना के करिए। आपको सीखना है, आप सबको भी स्विच वर्ड सीखने हैं, एनर्जी सर्कल। मैंने बहुत 2 महीने पहले मैंने मॉमप्रेनर के लिए, बहुत सारी मॉम्स के लिए किया था स्विच वर्ड्स फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर मॉम्स टुगेदर। तो बहुत ही अच्छा सेशन हमने 2 बार किया था। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो बता देना, हम लोग एक क्लास अरेंज करके सबके लिए कर देंगे। ठीक है, yes, Niharika ji, for financial problem also you can do it, make an energy circle। I have written down the switch word phrase, you can do that। you can if you are even कभी हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं ना, like if you want some solutions, हम लोग ने पास्ट में हम लोग ने कोई चीज़ें कभी कभी चीज़ें याद नहीं आती कि भाई मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, कोई चीज़ें हम रख के भूल जाते हैं, पता नहीं मैंने वेयर आई केप्ट इट, आई कांट रिमेंबर इट। और यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, और यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर समबडीज नेम। तो ऐसे कोई चीज़ें हैं कि आपको सोल्यूशन चाहिए, आप कोई चीज़ें ढूंढ रहे हो, तो आप उसका मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। इंग्लिश का है रीच नाउ, मैं नीचे डाल देती हूँ तो आप लोग को दिख जाएगा आराम से। इट इज़ रीच नाउ, रीच नाउ। ठीक है, इसको आप चैंट करोगे 108 टाइम्स। बिजनेस के लिए आप ये मंत्र भी अच्छा है। गीता जी, डोंट वरी, ऑल द ब्लेसिंग्स टू यू। इतनी अच्छी हमारी फेस्टिवल आ रही है और आज से तो बहुत ही अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। सो हाँ लीना जी, आपके लिए आप वही इंटेंशन करके कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको जॉब के लिए भी मंत्र भेज देती हूँ स्विच वर्ड्स का, अगर आपको करना है, या एनर्जी सर्कल। आप मुझे अगर इनबॉक्स कर देंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं आपको इनबॉक्स में एनर्जी सर्कल भेज दूंगी। ठीक है ना। एंड एनीबडी ऑफ यू एनीथिंग एल्स? यस, फॉर गुड हेल्थ ऑल्सो। अल्पा जी, कुंजित पादम शरणम का सर्कल, आप एक एनर्जी सर्कल में आप अपने फैमिली मेंबर्स के भी नाम डाल के कुंजित पादम शरणम लिख सकते हो एंड पुट द इंटेंशन, आई एम ब्लेसिंग everyone with prosperity, abundance and good health। ऐसे इंटेंशन डाल के आप एनर्जी सर्कल बना सकते हो। गीता जी, डोंट वरी, 3 महीने लगते हैं, आप कीजिए, ये ज़रूर काम करता है। मैंने बहुत जनों को देखा है, उनका हेयर फॉल ख़त्म हो गया है। तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, करते रहिए। आपको अगर हीलिंग कोड भी चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिए एंड आई विल सेंड यू द हीलिंग कोड। एंड फॉर हेयर फॉल ऑल्सो डू ट्राई इट आउट, इट विल डेफिनेटली वर्क। Shilpi ji, for business to grow, you can for good in a windfall of money, I have just given everyone, find, count, divine citrine. Let me write it down again. I'm writing it down here in the comment box, so all of you can just note it down, और तो spelling mistake नहीं होगा। All of these are in capital, okay? Capital words। अगर आपको चैंट करना है आप चैंट भी कर सकते हो, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो।
ओके, इंटेंशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिट्रीन का वर्ड इज ओनली फर्स्ट कैपिटल, वो कैपिटल फुल वर्ड कैपिटल नहीं है. सिट्रीन इज अ जेम स्टोन विच अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस एंड वेल्थ. तो अगर आपके पास सिट्रीन का जेम स्टोन नहीं है तो सिट्रीन की फोटो है ना, वो भी आप लगा सकते हो. ये वर्ड्स आप अपने एक छोटा सा फोटो बना के अपने ही फोटो के ऊपर ये वर्ड्स लिख के उसका वॉलपेपर बना के अपने फ़ोन पे चिपका दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है. ठीक है. फाइंड काउंट डिवाइन सिट्रीन. यस गीता जी, ओनली चैंटिंग इज ऑल्सो ओके. आई एम गिविंग यू डिफरेंट ऑप्शंस. आप चैंटिंग कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो, और आपको अपनी वॉइस में उसको रिकॉर्ड करके प्ले करना है लूप में, आप वो भी कर सकते हो. नॉट अ प्रॉब्लम. हमारा फिजिकल ईयर नहीं सुन रहा है चलेगा, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हमेशा जागृति होता है. यू नो, जब हम सो भी जाते हैं ना, तो हम सोते टाइम हमारा जो सबकॉन्शियस है वो तो वैसे भी अवेक ही रहता है. हमारा फिजिकल ईयर नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं, हमारा सबकॉन्शियस सुन रहा है. बच्चों के पास भी आप मंत्र छोटा सा ना ऑन करके लो वॉल्यूम में छोड़ सकते हो. इट हेल्प्स अ लॉट जब भी वो लोग सोते हैं ना, और इट वर्क्स वेरी वेल. ठीक है. बहुत लोगों को नींद नहीं आती ये वो, तो आप छोटा सा मंत्र ऑन करके रात को सो सकते हो, तो उससे जल्दी आ जाता है. अल्पा जी, सर्कल तो सिंपल, जैसे आप एक ब्लैंक पेपर पे ही बनाइए एनर्जी सर्कल. लाइंड पेपर और प्रिंटेड पेपर नहीं यूज़ कीजिए. ब्लैंक पेपर पे सर्कल बना दीजिए. कटोरी रखो या छोटी सी प्लेट ले लो जो राउंड है, तो वो आप यूज़ करके ब्लू पेन, ग्रीन पेन या रेड पेन से कर सकते हो. ठीक है. अगर हेल्थ इश्यूज़ है जहाँ पर है उसको हील करना है, तो आप ग्रीन या ब्लू कलर यूज़ कीजिए. बच्चों के लिए अगर यूज़ कर रहे हो और बच्चे गुस्से में ज़्यादा रहते हैं, एजिटेटेड रहते हैं, बहुत हाइपर रहते हैं, तो रेड कलर अवॉइड करके ग्रीन ब्लू यूज़ कीजिए. Blue and green is very soothing color, and it is the color of the heart chakra. Green is for our heart chakra and blue is for our throat chakra, our communication. तो green और blue colors आप use कर सकते हो. ठीक है. गीता जी, blessing you a lot. Don't worry, I'm praying for you, wishing you lots of joy, happiness, abundance and prosperity. आई एम गोइंग टू एंड द सेशन. मैंने 30-40 मिनट से कुछ ज़्यादा ही ले लिया है. माई अपॉलॉजीज, मैंने आप सब लोग को इतना पकड़ के रखा है यहाँ पर. आई होप यू लाइक द सेशन टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप देम हियर. आई विल ट्राई टू reply to you as quickly as I can, or you can send me an inbox message if you want to receive an energy circle related to today's session. I will send it to you. Other than that, yes, you all are most welcome to join my workshops. And thank you very much, Manju ji, for your kind comments. I know you have learnt and used it so much that you keep on telling and recommending everybody. Appreciate it, and thank you very much for your blessings and lots of love. Thank you, thank you, thank you. So I'll take a leave from all of you. And I hope गीता जी, डोंट वरी, आई विल सेंड यू द हीलिंग कोड. आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपको हेयर फॉल और उसके लिए भी हीलिंग कोड जो आपको चाहिए आपको भेज दूंगी. मधुमती जी, मैंने बिजनेस के लिए यही बोला था, फाइंड काउंट डिवाइन सिट्रीन. अदरवाइज मैंने एक और पहले लिखा हुआ है, डिवाइन ग्रेस बी टुगेदर फॉर एवर, वो भी आप यूज़ कर सकते हो. मनी के लिए फॉर इमीडिएट विंडफॉल ऑफ मनी यू कैन यूज द हीलिंग कोड 520 Hz. I will write it down and show you guys how you can do this. So the number is 520. ठीक है. ऐसे आप लिखोगे 520 HZ. This is 520 Hz. This is for immediate windfall of money. ठीक है. तो ये आप यूज कर सकते हो. If you want healing code for removing obstacles, 741. ठीक है. 741. Okay.
So I'm going to end the session now. Thank you everyone for your for your presence. I'm so happy, and I hope all of these tips help you. And yes, I think I've left out one or two more that I would quickly share if you all can give me a few more minutes. One is आप जब भी दिया जलाते हैं घर में, अपने बॉडी की, अपने ऑरा की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो आप दिया को जला के क्लेंस कर सकते हो. तो अगर आपने दिया अपने सामने रखा है तो व्हेन यू आर डूइंग द क्लेंजिंग यू विल सेट द इंटेंशन एंड यू विल डू योर हैंड्स अबाउ यू एंड थ्रो द एनर्जी इनटू द दिया. आप ऐसे करोगे. इंटेंशन इज आई एम रिमूविंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज दैट डू नॉट सर्व मी एनी मोर. आई एम गिविंग इट टू द डिवाइन लाइट. लाइट इज गॉड है ना, साउंड एंड लाइट इज गॉड. तो ऐसे आप अपने आप को ऐसे क्लेंस करके, जितना आपको लग रहा है, आपको हाथों से करना है, ऐसे आप एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज को निकाल के दिए में डाल देना. ऐसे बॉडी से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो एंड पुट इट इन द लाइट. आफ्टर दैट टेक द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द लाइट. आई एम रिसीविंग द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स for prosperity, abundance, good health, joy and happiness for myself and for my home. And then हम लोग आरती करते हैं ना, तो हम लोग ऐसे ही लेते हैं. आरती का यही मतलब होता है. आप क्यों आरती से आपने दिए के ऊपर हाथ क्यों ले रहे हो? आप वो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी अपने ऑरा के ऊपर अपने आप को ब्लेस कर रहे हो. सो दिस इज द वे you will remove the negative energy and take the positive energy from the light and shower yourself with your whole aura with the energy. Okay, this is one. Last tip I'm giving you all. This is for all the time, all year round you can use it. Namak, salt. Take salt and have a bath with salt every week. हफ्ते में एक बार, एनी टाइम. अगर बार बार लोग बीमार पड़ रहे हैं, पीपल हैव नेगेटिव थॉट्स, इमोशन, बुरे ख्याल आते हैं, किसी के घर पे होके आए, बाहर से होके आए, अच्छा नहीं लग रहा, वियर्ड लग रहा है, इमीडिएटली सॉल्ट बाथ. बकेट में लो, 2-3 चम्मच नमक डाल दो. कोई भी आप जो कुकिंग सॉल्ट है वो भी ले सकते हो, हिमालयन सॉल्ट, सादा नमक जो है आपके पास, आप वो लेके बकेट में डालो और उसके बाद शावर करो. और उसके बाद पानी का नॉर्मल रिंस कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. बकेट से स्नान नहीं कर सकते हो, अपने पैरों को पानी में डालो, नमक डालो और 10 मिनट अपने पैरों को रखो और जस्ट सेट द इंटेंशन दैट द वाटर इज टेकिंग अवे द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर बॉडी. सॉल्ट इज द बेस्ट क्लेंजर. घर में भी आप जब भी झाड़ू कटका करते हैं, मॉप करते हैं ना, 1 चम्मच नमक डाल के और फिर आप अपने घर को क्लेंस कर सकते हो. इट वर्क्स अमेजिंग. नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो जाती है. Okay, so try to take a bath, shower at least once a week with salt. It removes all the negative energies from your aura. It's a aura cleanser basically. आपकी aura जो है, हमारे emotions और वो सारे accumulate हो जाते हैं. So it's a very good cleanser. ठीक है. Alright everyone, thank you so much and wishing you all a happy Karwa Chauth for today. Blessings to all of you and wishing you all a beautiful and a happy Diwali and a happy new year, everything in advance. I would love to hear from you all. I hope you like the session and do share this with others so everybody also benefits, your family, your friends. And once again, I thank you all for joining Mompreneur Circle. Thanks to the team of Mompreneur for giving us such a beautiful opportunity to be together again today. Thank you everyone. Have a great day. Happy festival. God bless you and happy healing. Take care. Bye bye. Thank you so much. Thank you Manisha ji. Thank you.